Good morning, church. Good morning, church. We welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से हमारे का स्वागत करते हैं। I hope you all are doing good, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब ठीक हैं and I'm sure that you will definitely be good, especially after witnessing this wonderful word and worship. और आज की आराधना के बाद मैं विश्वास करता हूँ कि और भी आपका जीवन और भी अच्छा होता जाएगा। Before we could lead the worship and word, let us look up to the Bible in Psalms chapter 32 verse 8. और आराधना में जाने के पहले हम एक छोटे से वचन को पढ़ेंगे। भजन संगीता उसका 32 अध्याय Psalms 32 verse 8. As we begin this word and worship, let us look up to the Lord and read this word. और आराधना में जाने के पहले हम एक छोटे से वचन को पढ़ेंगे। भजन संगीता 32 अध्याय उसका 8वां वचन। I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. How wonderful our God is. हमारा परमेश्वर महान है। And as we had celebrated Teachers' Day during this week, और जैसे ये हफ्ते हमने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया, and we always are grateful for our teachers और हम हमेशा अपने टीचर्स के लिए बहुत ही धन्यवाद हृदय के साथ रहते हैं, because they really play a major role in our lives. क्योंकि हमारे जीवन में एक मुख्य भाग वो लेते हैं। Even though our parents are the ones who teach us from the beginning, हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं तो भी but they are the ones who really mold us. वो टीचर्स ही है जो हमें चलाते हैं, अच्छे से बनाते हैं। And when we look up to the word, we see that the Lord has the one who is going to instruct us and teach us. और बाइबल में जैसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर ही है जो हमारी अगुवाई करते हैं, हमें सिखाते हैं। So above all, He is our main teacher in our lives. वही है महान मुख्य अधिकारी जो अगुवाई करने वाला परमेश्वर। And as the word says that the Holy Spirit is the one who's going to lead us and make us in a way that we are always in good terms. और पवित्र आत्मा ही है जो हमें अगुवाई करता है, शिक्षक होके हमें सिखाते हैं। How wonderful our Lord is. हमारा परमेश्वर महान है। And we need to really look up to Him. तो इसलिए हमें परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। Because He's the one who's going to instruct us. क्योंकि वही है जो हमें सिखाते हैं। And as we believe that we begin this word and worship, we will also look up to the Lord where He will guide us. और जैसे ये आराधना करने से पहले हम परमेश्वर की ओर देखेंगे ताकि परमेश्वर हमारी अगुवाई करते रहे। Come on, church, rise up and let us look up to the Lord in prayer. आए हम परमेश्वर की ओर देखें और प्रार्थना करें। Lord, we thank you for this time you have given us. प्रभु धन्यवाद करते हैं सुंदर समय जो आपने दिया। We thank you for the provisions which you have provided during this last week, Master. प्रभु जो कुछ भी कार्य आपने हमारे जीवन में किया उसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं। And we thank you for this life you have given us, और प्रभु ये जीवन के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। so that we may witness this wonderful day that you have made us. ताकि हम ये दिन के लिए गवाही बन के रहे कि आपने हमें ये जीवन दिया। Lord, we thank you for all the wonderful things you have blessed us now. और जो कुछ भी अच्छे कार्य आपने हमारे जीवन में किया उसके लिए धन्यवाद। We thank you for the good health and strength which you have given us, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे से आपने हमें रखा है उसके लिए धन्यवाद ईश्वर। so that we may glorify you in everything we do. ताकि जो चीजें हम करते हैं उसमें हम आपके नाम की महिमा करें। Lord, as we begin the service, Lord, we look up to you. प्रभु जैसे आज की सभा हम शुरुआत करते हैं, हम आपकी ओर देखते हैं। Speak to us through the word, through the pastor, और वचन द्वारा, पासवान द्वारा हमसे बात कीजिए। and let us glorify you in truth and spirit as the worship team would lead और us. आत्मा और सच्चाई से आपके नाम की महिमा करने के लिए We pray हमें for मदद your कीजिए। protection upon us, Lord, आपका सुरक्षित हाथ हमारे ऊपर रहे। and we pray for the worship team who is going to lead us in worship, और आराधकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमें अगुवाई करेंगे। and we pray for the pastor who is going to lead us in the word, और पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमें वचन में अगुवाई करेंगे। and we believe that you are going to speak to us through your word, Lord, और today. हम विश्वास करते हैं आप वचन द्वारा हमसे बात करेंगे। And we pray for all the wonderful people who are watching us right now in the name of Jesus. और हर एक के लिए जो ये देख रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। Lord, we know that you are the prayer answering God. हम जानते हैं आप प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। And those who are having heavy hearts, Lord Almighty God, you take total control in their lives. जिसके भी हृदय में वो बोझ है
आज आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए। And we pray that Lord Almighty God, you take total control of the logistics, the internet, the things which are surrounded by us, और Lord. हम प्रार्थना है हर नेटवर्क के लिए जो हमारे इर्द गिर्द में है और हर एक लोग के नेटवर्क के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि कोई भी मुश्किल या रुकावटें न हो। We thank you for all the wonderful things you have done in the coming days as well, O Lord. आने वाले दिनों में भी आप महान कार्य करने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद। Because your word says that let us not be led by our sight, but let us be led by faith, O Father और God. प्रभु हम जानते हैं अपने वचन में कहा कि अपने आंखों से ही हम नहीं चलते लेकिन हमारे विश्वास से हम आगे बढ़ते हैं। And we believe that this day you have made us. प्रभु आज का दिन आपने बनाया And we know that you're going to answer our prayers as well, Lord. और आप हमारी सब प्रार्थना का उत्तर देने वाले हैं। We thank you for all the wonderful things you have done in our lives. सारी अच्छी चीजों के लिए We धन्यवाद। give you all the glory and honor. सारी स्तुति महिमा आपको देता In है। the name of Jesus we humbly pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. Amen. Praise the Lord, church. प्रभु की स्तुति। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Hallelujah, hallelujah. The Lord is good and He's worthy to deserve all the glory, honor and praise. प्रभु महान है और सारी स्तुति और आदर के योग्य है। Hallelujah. Hallelujah. As we are excited to come together to worship the King of Kings and the Lord of Lords, let us put our hands together, our hearts together and worship Him with spirit and in truth. और जैसे हम इकट्ठा आए हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, हम ताली बजाकर उत्साह के साथ परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है और उनके अलावा कोई नहीं है हमारे जीवन में। हमें हर स्तुति के योग्य। दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर की ओर अपनी आवाज उठाऊंगा, परमेश्वर की ओर मैं आवाज उठाऊंगा विश्वास के साथ। आज हम भी वैसे ही उनके समान ही परमेश्वर की ओर अपनी आवाज उठाएंगे, धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो हर स्तुति के योग्य है। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे। हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे। हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन दिया और रक्त भी बहाया, पापों को मिटा दिया, पवित्र करके हमें मुक्ति दिया है। हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, पापों को मिटा की पवित्र करके मुक्ति भी दिया है, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति
सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आमीन। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ फिरेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ फिरेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु है, प्रभुओं का प्रभु यीशु है। हालेलुया। He is the King of Kings and the Lord of Lords, the one beyond all understanding, the one who was, who is and who is to come. हालेलुया हालेलुया। जैसे आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु कौन है, भला ही प्रभु है। हालेलुया। जैसे आप विश्वास करते हैं कि राजाओं का राजा यीशु है, आप अपने घर के राजा यीशु को जैसे आप रखते हैं, आपके दिल की राजा को जैसे आप यीशु को रखते हैं, विश्वास के साथ उनकी नाम की महिमा करते हुए हम ये सुंदर गीत गाएंगे। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है।
हालेलुया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो वीरों ने था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो वीरों ने था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, हालेलुया। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन है यहोवा। जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु का प्रभु है, वो प्रभु का प्रभु है। आमेन, हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर उस राजा का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का भी प्रभु है। The God whom we worship is the King of Kings and the Lord of Lords. हालेलुया। हमारे सम्मान के लेवल के परमेश्वर नहीं है, वो राजा है, वो सिंहासन पर विराजमान है, पर फिर भी हमारे बीच में वो आता है। Amen. In spite of being the King of Kings and the Lord of Lords, because He loves us so much, He comes in the midst of us. वो हमारे बीच में आता है। और जैसे हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, इस रविवार सुबह के समय में आप सबका स्वागत हम करना चाहते हैं। और जैसे हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं इस लाइव पर, हम विश्वास करते हैं कि आज भी ये राजा आपके जीवन में एक महान कार्य करेगा। आमीन। जैसे हम परमेश्वर के पास आते हैं, बाइबल में लिखा है कि मनुष्य चेहरे को देखता है, मनुष्य बाहरी रूप को देखकर जजमेंट पास करता है, पर परमेश्वर हमारे हृदय को जांचते हैं। आमीन। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इज़राइल के देश को एक पहला राजा साउल दिया था। सॉल वाज द फर्स्ट किंग ऑफ इज़राइल। और जब साउल को परमेश्वर ने चुना, बाइबल में लिखा है कि पूरे इज़राइल में उसका सिर सबसे ऊपर था, मतलब वो हाइट में सबसे ऊपर था। You know, he was taller than everyone. Bible says one head higher than everybody in Israel. मतलब पूरे इज़राइल में सबसे एक बलवंत था, अच्छे दिखने में था और हाइट में भी बहुत बड़ा था। इसके कारण क्या हुआ, पूरा इज़राइल उसको ऊपर देखने लगे कि वाह, परमेश्वर ने क्या राजा हमें दिया है। और परमेश्वर ने सामुएल जो भविष्यवक्ता उनसे कहा कि ये लोग ने तुम्हें
सैमुअल को नहीं ठुकराया। इज़राइल के लोग देख रहे हैं कि सभी देशों में इतने सारे अच्छे अच्छे राजा हैं, रानियां हैं, युद्ध होता है, बहुत सारे चीज होते हैं, हमारे देश में तो हमारे पास राजा नहीं है। तो इज़राइल के लोग सैमुअल से गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि हमें भी एक राजा चाहिए। और बाइबल में लिखा है कि सैमुअल उस समय वो एक जज था, न्यायी था, वो इज़राइल के लोगों को न्याय देता था। और सैमुअल को ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि ये लोग एक राजा मांग रहे हैं। और परमेश्वर सैमुअल भविष्यवक्ता से कहते हैं, सैमुअल तुम क्यों दुखी हो? ये लोगों ने तुम्हें नकारा नहीं, तुम्हें टुकराया नहीं, वो लोग ने मुझे नकारा है। These people have not actually avoided you, they have not ignored you or set you aside. They have belittled me. वो लोग ने मुझे टुकराया है, वो लोग ने मुझे टुकराया है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इज़राइल का युद्ध परमेश्वर यहोवा लड़ता था, वो उनका राजा था। और ये लोगों ने जब एक मनुष्य को खोजा उनके राजा बनने के लिए, सैमुअल के अंदर एक दुख आई और परमेश्वर सैमुअल को देखकर कहते कि तुम दुखी मत होना, वो लोग ने मुझे टुकराया है। पर फिर भी परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों की मांग को पूरी की और एक राजा उनको दिया। और बाइबल में लिखा है वो राजा साउल था, सबसे अच्छा दिखने वाला, सबसे हाइट में ऊपर था और उसको बलवंत था। और लोग भी वाह हमें एक बहुत अच्छा राजा मिला है ऐसे सोचने लगे। पर बाइबल में लिखा है, आप जैसे बाइबल पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने साउल को छोड़ दिया, क्योंकि साउल परमेश्वर के सामने ठीक नहीं था, उसे परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं किया था। और परमेश्वर राज्य को साउल और उसके परिवार से छीन लिया। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि इससे उत्तम एक मनुष्य मैंने चुना है, मैंने एक अभिषेक व्यक्ति को चुना है जो मेरे हृदय के करीब है, जो मेरी जो भी सोच है वो पूरा करेगा। I have chosen someone who is after my own heart and he will fulfill everything that my heart desires. मेरा हृदय जो भी चाहता है वो मनुष्य वो पूरा करेगा। What is the use of the stature? What is the use of the position? राजा का स्थल का क्या फायदा हुआ, उसका दिखने का क्या फायदा हुआ? और परमेश्वर ने एक ही समय में साउल को नकार दिया और परमेश्वर ने ऐसे एक जन को चुना जो परमेश्वर के हृदय के करीब है। He chose David. उन्होंने दाऊद को चुना। और यीशु परमेश्वर कहते हैं कि दाऊद को चुनने से पहले कहते हैं सैमुअल को कि ये मनुष्य जो मैंने चुना मेरे हृदय के सारे कार्य को वो पूरा करेगा। He will do the purposes of my heart. मेरे हृदय का कार्य वो करेगा। दाऊद राजा बनने के पहले ही परमेश्वर को वो विश्वास था कि दाऊद मेरा सब कार्य पूरा करेगा। और जब साउल और दाऊद को हम कंपेयर करते हैं, साउल एक आदमी था, he was a man, someone, a man with capability, talent. पर जब दाऊद को परमेश्वर ने चुना वो एक लड़का था, he was a young boy, चरवाहा था, स्टेटस में भी कुछ नहीं। उसके खुद के भाई आर्मी में काम करते थे, वो लोग भी बलवंत थे, पर दाऊद उनके सामने कुछ नहीं था, एक लड़का था। पर परमेश्वर ने उसको चुना, उसके द्वारा गोलायत को मराया, पूरे इज़राइल में दाऊद को एक चैंपियन बनाया। और साउल को हटाकर परमेश्वर ने दाऊद और उसके घराने को सिंहासन पर बिठाया। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर है। वो बाहरी रूप को देखकर जजमेंट पास करने वाले परमेश्वर नहीं है। आपके टैलेंट, आपका जो कितना आप कर सकते हैं, आपका क्या स्टेटस है, आपका क्या पोजीशन है सोसाइटी में, इट डजंट मैटर टू क्राइस्ट। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है उससे बढ़कर कोई खुशी है नहीं। आमेन। इफ गॉड हैज चोजन, बाइबल सेज इवन बिफोर वी वर फॉर्म्ड इन आवर मदर्स वूम, हमारे माँ के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने हमें नाम से पुकारा है, इस दुनिया से अलग किया है और एक मकसद हमें दिया है। पर क्या आप आज भी परमेश्वर के हृदय के काम को पूरा करेंगे? Are you willing to fulfill the purposes of God's heart? परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहे हैं। God is looking for people like David. दाऊद के सम्मान लोगों को परमेश्वर खोज रहे हैं। It doesn't matter what you are, where you are, and what kind of a person you are. क्या आप परमेश्वर के हृदय के करीब रहना चाहते हैं? आराधना आत्मा और सच्चाई से करना चाहते हैं? परमेश्वर को पूरे हृदय से प्रेम करना चाहते हैं? परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है। हालेलुया। अपने आप को नम्र करेंगे आज भी, जैसे हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, अपने आप को नम्र करते हुए कहेंगे प्रभु
मेरे जीवन में आज भी महान कार्य कीजिए. Do something new in my life today, Father. राजा को हटाकर राजा खड़ा करने वाला परमेश्वर है. देश देश को हटाकर दूसरे लोगों को खड़ा करने वाला परमेश्वर है. पर आज परमेश्वर ने हम सबको चुना है, नाम से पुकारा है, इस दुनिया से हमें अलग किया है और एक नाम हमें दिया है जो सब नामों से ऊंचा है, वो है यीशु नाम. आमीन. जैसे हम ये नाम ऊंचा उठाते हैं, हम परमेश्वर को खोजेंगे, कहेंगे प्रभु मेरे हृदय के करीब आइए, आपके वचन से मेरे जीवन को भर दीजिए, आपके प्रेम से प्रभु मेरे जीवन को भर दीजिए. As we look up to the Lord, let us lift up our hearts, our voices and say, open the eyes of my heart, Lord, that we may seek you and sing to you in spirit and in truth. Hallelujah. Jesus. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I will see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. 'Cause I want to see you. I want to see you, Jesus. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining
विराजमान हो जाइए, हमारे जीवन में विराजमान हो जाइए प्रभु। Be enthroned in the praises of your people, Father. हमारे आराधना में विराजमान हो जाइए, हमारे आराधना में आप प्रसन्न होइए प्रभु। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Father, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। जैसे हम प्रभु करते हैं, हालेलुया, उनकी महिमा करते हैं, उनके नाम को उठाते हैं। प्रभु आपके घर पे, आपके सामने उपस्थित रहकर आपके जीवन में एक नया कार्य करने वाला है। हालेलुया। As we say that we are worshiping you, Lord, as we look up to Him, seeking Him, He's going to do something new in our lives. Hallelujah. करते हैं तेरी हम स्तुति प्रभु, हृदय की गहराइयों से हम आपकी स्तुति करते हैं। आइए अपने आवाज उठाकर अब उनकी महिमा करते हुए। हालेलुया जीसस, हालेलुया। Worship you, Jesus. We worship you. करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं तेरी स्तुति यीशु, साथ में की आवाज उठा के। करती है तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करती है तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें, ऊंचा उठाए यीशु। आत्मा और
और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, केवल यीशु तू है। हालेलुया जीसस, हालेलुया। We worship you, my Father. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय जो आपने दिया उसके लिए धन्यवाद यीशु। केवल आप ही हमारे प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान यीशु है। We thank you, Lord Father. We give you all the glory, honor and praise, Daddy. सारी स्तुति महिमा आपको देते हैं। हर स्तुति के योग्य केवल आप है यीशु, केवल आप है यीशु। इस पूरे हफ्ते आपने हमें चलाया, जीवित रखा, आज भी आपके नाम की महिमा करने के लिए एक और मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी स्तुति महिमा हम आपको देते हैं। हर एक बंधन को, हर एक रुकावटों को, हर शैतान की ताकत को, हर योजनाओं को जो हमारे विरुद्ध में आता है, यीशु के नाम से हम उसको बांधते हैं और बाहर निकालते हैं। In the name of Jesus, we give you all the glory, honor and praise, Daddy. आपके नाम की महिमा हो यीशु। आपने वचन में कहा, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। Lord, you said you will give us rest, Lord Jesus. We give everything into your hands. सारी स्तुति महिमा आपको देते हैं, सारी बोझ को हम आपको देते हैं। आपके नाम की महिमा हो। जैसे वचन को भी सुनेंगे हम मानते हैं, वचन अनुसार जीने के लिए हमें मदद कीजिए, हमसे बात कीजिए। सुनने के लिए कान, समझने के लिए हृदय हर एक को दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो कोई ये लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं और जो देखने वाले हैं, ये गवाह बनाकर जिएंगे। प्रभु सारी स्तुति आपको देते हैं यीशु मसीह के पवित्र अति पवित्र नाम से सुन और कबूल कर हमारी स्वर्गीय जीवित पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार ताली बजा के हम यीशु का धन्यवाद करेंगे। हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, उनके समान कोई नहीं है। क्या उत्साहित है आज? यस, जैसे ही हम वचन को भी सुनेंगे, हम अपने आप को तैयार करेंगे कि प्रभु हमसे बात कीजिए। मेरे जीवन के लिए जो जरूरत है वो आप जानते हैं, और उसके अनुसार मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आई जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आमेन, आमेन। Hallelujah. As you are watching us this live stream, हम विश्वास करते हैं आप आशीषित हैं जैसे आप जुड़े हुए हैं। We request you to share and with all your families and your friends so that they also will be blessed with this. Hallelujah. Hallelujah. As you are ready for the word, आइए जोरदार ताली बजाकर प्रभु को हम धन्यवाद कहेंगे। अपने बाइबल्स के साथ तैयार रहे और प्रभु के नाम की महिमा करें साथ में।
हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम से मैं आपको आशीष देता हूँ। I bless you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर बनाए परमेश्वर है The Lord is a good God. और आपको ऊपर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। He's a God who loves you. आज के दिन प्रभु आपको एक नया कार्य करने वाला है। The Lord is going to do something new in your life today. आप बहुत कुछ प्रॉब्लम में फंसे होंगे, You might be struggling through problems, हजारों टेंशन में रहेंगे, a lot of worries. लेकिन प्रभु आपको प्रेम करता है, आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। And because the Lord loves you, He's going to bless you. अगर आप परमेश्वर को ऊपर विश्वास करेंगे तो आप उनका बेटा बेटी बन जाएंगे When you believe in the Lord Jesus Christ, you become His children, और ये परमेश्वर का जो आशीष है अपना बेटा बेटी के मिलने वाला है and His blessings will come on His children. और परमेश्वर बहुत बड़ा है। God is very good. He's very big. हालेलुया। Hallelujah. और वो छोटा छोटा चीज नहीं बनाते, बहुत बड़ा बड़ा चीज आपको कार्य करने वाला है। He's not going to do small things, but He's going to do big things in your lives. परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है, लेकिन कभी कभी आप अपने आशीषों को खो जाते हैं। Many times you just lose your blessings because of disbeliefs. परमेश्वर के हम पढ़ेंगे Genesis की किताब 25 अध्याय। अब्राहम का जो बेटा ईसाक और परमेश्वर का जो चुना हुआ व्यक्ति है और परमेश्वर अब्राहम से जो बात किया था, मैं तुम्हारा संतान के संतान में आशीष देंगे करके परमेश्वर ने वातावरण किया है। Abraham, a man called by God, and God had promised and blessed Abraham that I am going to bless you and your descendants. और उनका वाचा में इसमें सामर्थ है। And there is power in His word. मेरे प्रियो, आज जो है समझ लीजिए, ये अब्राहम के जीवन में संतान पहले नहीं हुआ था। Abraham did not have descendants, और उम्र जो 100 तक आ गया है and he was nearly 100 years old. और उनका पत्नी जो सारा है उम्र हो चुकी, And Sarah was also very much in age. लेकिन परमेश्वर का वचन अभी भी जीवित है। But the word is alive. मेरे प्रियो, आज आप परमेश्वर आपसे जो बात करने वाला है, जो आपको ऊपर, जो परमेश्वर ने आपको ऊपर जो भी भविष्यवाणी जो किया है, वो आपके जीवन में एक न एक दिन कार्य होने वाला है। Whatever the Lord has prophesied over you will definitely come to pass in the days to come. उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। You have to wait for अभी it. अब्राहम के जीवन में ऐसा फायदा होने के बाद When Isaac was born for Abraham, काफी मतलब ऐसा जो शादी करके 20 साल के बाद उनको संतान पैदा हुआ। and we see that Isaac had children after 20 years of getting married. क्योंकि आइसक ने जो शादी करने के समय में उनको उम्र 40 थे। And because when Isaac was 40 years old, that was when he got married. और वो शादी करने के बाद उनके जीवन में संतान नहीं है करके अब उसने क्या किया हम देखेंगे। And we see that after getting married and being after 20 years of marriage, when he didn't have children, we'll see what he did. उत्पत्ति 25 अध्याय 21 वचन पढ़ेंगे। Genesis chapter 25 verse 21। Now Isaac pleaded with the Lord for his wife because she was barren, and the Lord granted his plea, and Rebekah his wife conceived. ईसा की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। जो ईसा का जो पत्नी रेबेका को संतान हुआ नहीं है। Rebekah, the wife of Isaac, was barren. अब ये समझ लीजिए 20 साल तक उनका जीवन में संतान पैदा नहीं हुआ। They did not have children for 20 years. और उन वचन में जो लिखा है वो माँ बनने की तैयार लायक नहीं करके लिखा है। And the word says that she was barren. लेकिन परमेश्वर का वचन का अनुसार जो वो माँ बन गई। But we see that by the grace of God she conceives. किस तरह जो माँ बन गई? How did she conceive?
इस उनका पति जो ईसाक ने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, Because Isaac, her husband, was praying and pleading to God. और जो परमेश्वर ने उनका प्रार्थना सुन के और उनको संतान दे And दिया। God answered the prayer of Isaac and blessed them with children. हालेलुया। Hallelujah. आप समझ लीजिए, आपके जीवन में भी इस तरफ जो कोई भी कार्य लेट होता है तो आपको भरोसा रखना है, परमेश्वर के ऊपर मांगना है। There might be delays in your life, but you need to hold on to the Lord and wait patiently and hold on to your faith. आइसाक ने उनको पत्नी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, Isaac did not blame his wife Rebekah. लेकिन परमेश्वर के ऊपर उसने प्रार्थना किया है। Instead, he looked to the Lord in prayer. आपके जीवन में कभी आशीष आने के समय में रुकावट हो तो आपको परमेश्वर का बस मांगना है। And in your life, if there are times of hurdles for blessings, हम वचन कंटिन्यू you need करेंगे। to look to the Lord in prayer. क्या कंटिन्यू करेंगे? इस प्रकार उसकी पत्नी रेबेका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। ये देख लीजिए, ये जो कहानी जन्म होने के बाद उनका जो घर के अंदर जो बच्चों आपस में लड़ाई चल रहा है। We see that once Rebekah was conceived, there was a struggle going on in her womb. और ये इसके बारे में रेबेका को मालूम पड़ जाता है अंदर के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहा है। And we see that Rebekah realizes that there's something going on in her womb. और उसने क्या किसके पास गया है? तब उस वो किसके पास गया है? कोई और किसी के पास नहीं गया है। And who did she go to? She did not look up to somebody else, but the word says, या रेबेका ने तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी the last line. 22 में जो लिखा है, She went to inquire of the Lord. वो परमेश्वर के पास पूछने गई। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। मतलब जो मैं इस तरफ जो मेरे को अंदर ऐसे लड़ाई चला, मैं कैसे जीऊंगी? So she was wondering about if such things are happening within me, how am I going to live? और इसके कारण वो परमेश्वर के पास में मांगेगी करके वो गई। So she turns to the Lord and to inquire of the Lord. मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास मांगना है। My dear ones, you need to first look up to the Lord. किस तरह वो रेबेका ने विश्वास की, इसी तरह से परमेश्वर ने उनका विश्वास के ऊपर उनके जवाब भी दे दिए। The way that Rebekah put her trust in God, that's the way that the Lord answers her. क्या? तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 जातियां तुम्हारे पेट से जन्म होने वाला है, शुरू होने वाला The है। Lord said that there are 2 nations that are in her womb. तेरे कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। ये देख लीजिए, जन्म होने से पहले परमेश्वर उनके बारे में जो बताता है, We see that the Lord is prophesying before they were even born, अलग अलग जातियां होंगी करके that there were 2 peoples और आपस में लड़ाई करेंगे करके, and they will be against each और other. एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। आप समझ लीजिए, बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। We see that the older one shall serve the younger one. ये जो कहानी नहीं, ये सच्चाई जो परमेश्वर ने लिखा है, इसका बारे में आपको और हमको ये सीखना बहुत जरूरी है। This is not just a story or a myth, but it's a real thing that happened that we need to learn and understand. आप ये वचन ये अधिकार में लिखता कंटिन्यू करेंगे हम अभी। Verse 24. So when her days were fulfilled for her to give birth, indeed there were twins in her womb. जब उसके प्रसव का समय आया, तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। जुड़वे बालक जन्म होने के हो गया है। We see that twins were born. ये जुड़वा है, अंदर पेट के अंदर लड़ाई चल रहा था जन्म होने से पहले। These twins were having a struggle inside the womb. इसलिए रेबेका ने परमेश्वर पर मांगने गई। And that's why she inquired of the Lord. And the first came out red. He was like a hairy garment all over. So they called his name Esau. पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर
कंबल के समान रोममय था। मतलब जो उनका शरीर पूरा एकदम लाल शरीर में जन्म हुए, लेकिन शरीर पूरा बालों से मतलब जो खैर से भरा हुआ था। So this first one was hairy and he was red. इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। ओके। Afterward, his brother came out and his hand took hold of Esau's heel. So his name was called Jacob. Isaac was 60 years old when she bore them. पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ। ये देख लीजिए, मजाक लग रहा है लेकिन ये सही बात है। We feel it's a joke, but it was real. वो येसे का साथ में याकूब भी साथ में आ गया बाहर। We see that with Esau, even Jacob had come out. वह उसके अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रेबेका ने उनको जन्म दिया तब ईसाक 60 वर्ष का था। ओके। So the boys grew, and Esau was a skillful hunter, a man of the field, but Jacob was a mild man dwelling in tents. फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। ये 28 में जो लिखा है, जो ईसा क्या करता था, जंगलों में जाके ईसाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रेबेका याकूब से प्रीति रखती थी। दोनों बच्चे के ऊपर पिता ईसा के ऊपर प्रेम रखता था और ज्यादा प्रेम रखता था, और रेबेका ने याकूब के ऊपर प्रेम रखता था। We see that Isaac was more loving towards Esau, and Rebekah was more closer and loving towards रेबेका Jacob. सुनिए, जो ईसा ने क्या करता था, अच्छा मतलब जो शिकार करके खाना बना के देता था, और ईसा ने बहुत मस्त खाते रहता था। And we see that Esau used to go for hunting and used to prepare a wild game, and Isaac used to enjoy it. और रेबेका याकूब के ऊपर प्रेम रखता था ज्यादा। And we see that Rebekah was more closer and एक attached to परिवार में Jacob. ऐसा नहीं है, माता पिता अलग अलग बच्चों के ऊपर से मतलब कुछ जो पसंद होता है उनके ऊपर प्रेम ज्यादा रखते हैं। It's not like parents love differently to their children. और हम ये देखेंगे इस तरह देने से में दोनों बड़ा हो गया है। And we see that these boys grew. और वर्ष 30 लिखेंगे, 29 पढ़ेंगे, 29 Now 30। Jacob cooked a stew, and Esau came in from the field, and he was weary. And Esau said to Jacob, "Please feed me with that same red stew, for I am weary." Therefore his name was called Edom. एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एडोम भी पड़ा। अब ये देख लीजिए, ईसा जंगल में जाकर आने के समय में बहुत थका हुआ था, बहुत भूख लग रहा था। We see that when Esau had returned from the forest, he was pretty hungry. और उसी समय में याकूब उधर कुछ खाना बनाता था। And we see that Jacob was preparing something, some food, कुछ लाल, उसके लाल कलर में कुछ देख रहा था। and it was very attractive, red in color. हम पढ़ेंगे That the stew was red. और वो याकूब को देखे ईसा ने कहता है, तुम जो बकारे जो लाल कलर का जो है मुझे थोड़ा दे दे। And he says that whatever you are preparing, that red stew, please give it to me. याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। ये देख लो, ईसा ने उनका नजर के सामने जो दिखाया वो चीज के ऊपर उसको पसंद हो गया है। We see that
Esau was attracted to something that was right in front of him. और उधर क्या हो रहा है, उधर डील हो रहा है, उधर एक सेल्स हो रहा है, देख लीजिए। And we see there is a deal going on there. और याकूब तो थोड़ा स्मार्ट लग गया, And Jacob was pretty smart. और वो देखा इनको अभी इनको इनका जो खाना जो है, ये बकरा है, जो सूप है, मतलब रेड कलर का है, ये इनकी जरूरत है, ये मांग रहा है, इनसे कुछ हमें कुछ करना पड़ेगा। And we see that Jacob was pretty aware about this is the stew that Verse Esau 31. really wants right now. Verse 31. But Jacob said, "Sell me your birthright as of this day." ईसा ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। अभी जो पहले तो का जो अधिकार, जो फर्स्ट बर्थ राइट हर फैमिली में होता है, लेकिन ये जो बता रहा है याकूब ने उनसे कहते हैं, तुम काम करो, तुमको ये जो चीज मैं दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे जो पहले तो जो अपना अधिकार जो है मुझे दे, बेच दे। Giving birthright to the first child is as usual in most of the families. But here when you see that he says, "Give me your birthright today instead of this stew." कितनी महंगी चीज के बारे में डील चल रहा है, वो बोल तुम्हारा बर्थराइट को मुझे दे दे। This is something important. This is something that is serious, and he talks about such a serious issue right here और in this ईसा ने moment. इसको एकदम इजीली समझ लिया। And Esau takes it very casually. क्या बता रहा है? And Esau said, "Look, I'm about to die. So what is this birthright to me?" याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। 32. एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। एक समय खाने के बारे में वो क्या बता रहा है, मैं अभी मरने वाला है, तेरा मेरा जो पहलौठे का जो अधिकार है उससे कुछ लेने देने नहीं है, मैं तुमको देने की तैयार है। Esau is saying that he's about to die and he feels like, what is this birthright useful for? It's good for nothing right now. ये छोटी एक समय खाने के लिए उन्होंने अपने बर्थ राइट, जो अपने पहलौठे का जो अधिकार जो है वो बेच दिया है। He gave away his birthright just for one time meal. इस तरफ जो आज बहुत जन अपने पवित्र जीवन को छोड़ जाता है, And many people today compromise and give away their holy life. जो परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष रखा है, वो आशीष को अपने अभिलाषा के कारण खो जाता है। And that blessing and the anointing that the Lord has kept for you is given away just because of mere lust. वो जन उधर जो लिखा है, ईसा वो देख के, मतलब जो लाल कलर जो देख रहा है, एकदम वो खाने से बिना वो उसको मन पसंद हो गया है। And without even tasting it, he was so attracted to that red stew. वो बोले तुम जो बना रहा है, जो पका रहा है, जो लाल कलर का जो है, वो मुझे दे दे। He's saying that red stew that you're preparing, give that to me. तो अपना आंखों का अभिलाषा से कंट्रोल करना पड़ता था। He was tempted through his eyes. He had to control it. अपने जीवन में क्या नष्ट करे वो वही समय में नहीं देखता है। He didn't realize what was going to destroy him. जिस तरफ से बहुत जन अपने जीवन के नाश करता There है, are many who are destroying their lives due to such silly temptations. एक टाइम का खाने के लिए, Just for one meal. एक टाइम का आशा के लिए, Just for that one time pleasure. और अपने जीवन को नाश करता है। And they destroy their entire वो life. पता है एक मैं मरने वाला, मुझे इससे लेने देने क्या है। He says that I'm going to die. What is this birthright going to do for me? और याकूब ने क्या करना था And उनसे? what did Jacob तुम say? मुझे प्रॉमिस करो। Then Jacob said, "Swear to me as of this day." So he swore to him and sold his birthright to Jacob. और उन्होंने अपने Verse 33. पहलौठों का अधिकार को बेच दिया है। And we see that Esau sold and gave away his birthright. मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे जो मांग रहा है, परमेश्वर ने आपके जीवन में जो दिया है उसको संभालना आपका काम है। Dear ones, what the Lord has given you, you need to take care about it. दुनिया का जो चाल चलन जो देखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, जो मन पसंद लेंगे, लेकिन परमेश्वर ने आपको जो रखा है वो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। The world may offer you beautiful and very attractive things, but you need to take precautions and understand what is going to do for your life. और उन्होंने जो मांगा है
याकूब ने दे दिया है। Just as Esau asked, Jacob gave it. Verse 34. And Jacob gave Esau bread and stew of lentils. Then he ate and drank, arose and went his way. Thus Esau despised his birthright. इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की डाल दी। उसने खाया, पिया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। जो अपने पहलौठे का अधिकार जो तुच्छ जाना, मतलब जो क्या क्या उसको एकदम ईजिली समझ लिया, इसका वैल्यू नहीं समझ लिया। Esau despised his birthright, rejected it and despised it. हम वचन में देख लेंगे, ये जो आज के जो संदेश जो यही है, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ रखा है। Today's message is about this. God has kept some things for you. जो पहले का जो अधिकार जो बता रहा है, परमेश्वर आशीष रखा है आपके लिए। Just like birthright, the Lord has kept certain blessings for you. अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह का स्वीकार करेंगे तो आप उनका बेटा बेटी बन गई। When the moment you receive Jesus as your Lord and Savior, you become His children. जो किस तरफ से एक बर्थराइट जो फर्स्ट बर्थराइट जो है, उस तरफ से परमेश्वर ने आपके लिए जो राइट रखा है, आशीष The रखा है। Lord has given you rights just like a birthright. हम वचन में देख लेंगे Hebrews chapter 12 verse 15। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय वचन 15। Looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। परमेश्वर आपके लिए अनुग्रह रखा है, वो अनुग्रह को आपको संभालना है और कोई भी आपको अनुग्रह को छीनना नहीं चाहिए। The God has kept grace over you, and you need to make sure and be careful that no one snatches away that from you. या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे। ये कड़वी जड़ मतलब जो आपके जीवन में, आपको परिवार में, आपको आत्मिक जीवन में वो आना नहीं चाहिए। अगर वो आ गया तो आपका आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। Don't allow any root of bitterness to come in your life, because that's going to destroy your life. तो आप आज परमेश्वर का बेटा बेटी हैं, Today you are the daughters and sons of God. परमेश्वर का अच्छे विश्वासी हैं, You believe in the Lord. लेकिन अगर इस तरफ से तो और कोई और जो जड़वा जो कड़वा जो चीज को आपके जीवन में लेने के समय में आपको पवित्र जीवन मिल जाता है। But if you allow root of bitterness into you, it's going to steal away holiness from you. Verse 16. Lest there be any fornicator or profane person like Esau, who for one morsel of food sold his birthright. ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौटे होने का पद बेच डाला। ईसा ने अपने जो पहलौटे का जो अधिकार को एक समय का खाने के लिए, एक समय का समय के लिए वो कोस दिया है। And we see that Esau sold his precious birthright just for a morsel of food. जो वचन में जो लिखा है वो उनको कितना बुद्धिमान नहीं है, अकल नहीं है, मतलब जो इतने लॉस का नुकसान हो गया करके जो वचन में जो लिखा है। We see that how foolish Esau was when he took such a step. और उसका जीवन के बाद वो बहुत कोशिश किया बता रहा है। And the word says that after this incident, he tried his best to cope up with life. Verse 17. For you know that afterward, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected. For he found no place for repentance, though he sought it diligently with tears. तुम जानते हो कि बाद में उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। ये जो बर्थ राइट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। The birthright was very important. परमेश्वर का बेटा बेटी आप जो बनाना है, आप जो समझते हैं एकदम इसी समझते हैं। To be
Don't take it casually when you are called sons and daughters of ये God. एकदम ऊंचा चीज है, It's a precious एकदम and उत्तम चीज है। it's very आप ये valuable. समझ लो, जो एक राजा का बेटा बेटी बनना इतना आसान नहीं है। It's not a joke to be a child of a king. अगर आपको राजा का बेटा बेटी बने तो आपको कहाँ जन्म होना चाहिए? If you had to be born as a son or a daughter of a king, where would you be born? आप राजाओं के प्लेस में जन्म होना चाहिए। You will be born in kingdoms. आप ये सोचो आपने कौन सी खानदान का है, कौन सी जगत का So है, you कौन सी need- भाषा है, किधर जन्म हो गया है। You need to understand which country, which palace, which place, which location. That's to be considered. कौन सी परिवार से आप जन्म हुआ है। Which family you are born in. लेकिन वो सब परमेश्वर ने वो सब आपको बुला के अपना बेटा अपना बेटी बना के स्थान दिया है। In spite of your background, but he calls you his son and daughter. तो इस तरफ से कभी ईसा का सम्मान अपने जीवन में हमें कोई खोजना नहीं चाहिए। And we need to be careful that we don't repeat a life like वो Esau. बहुत रोया है, इसमें वचन जो लिखा है बहुत रोया है, बहुत ढूंढा है, लेकिन आखिर में मिला नहीं करके जो लिखा है। The word says that Esau diligently cried and prayed and asked for forgiveness and to just seek that inheritance. जब हम वचन में पढ़ेंगे जेनेसिस 27 वापस कंटिन्यू करेंगे। जेनेसिस 27 उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय। और एक बार याकूब ने ईसा को फंसाता है। And we see that Jacob once again deceives Esau. वर्स 1 पढ़ेंगे 27:1। Now it came to pass when Isaac was old and his eyes were so dim that he could not see, that he called Esau his older son and said to him, My son. And he answered him, Here I am. तब ईसाक बुढ़ा हो गया, उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था। तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? तो आगे उसने कहा, Behold, he said, Now I am old, I do not know the day of my death. मैं मरने वाला है, मेरे तारीख मालूम नहीं है। उसने कहा, सुन, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। तो आगे इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। क्यों बता रहा है तुम जंगल में जाओ शिकार करके अच्छा मुझे भोजन बनवा के दे दे करके। Now he's saying to take your weapon, your quiver, and your bow, and go out to the field and hunt game for me. जो वचन 4 में जो लिखा है, जो Verse 4 says, And make me a savory food, such as I love, and bring it to me that I may eat, that my soul may bless you before I die. तब मेरे रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना। जो ईसा जो बता रहा मेरे को जो पसंद है उस तरह से तुम मेरे को बनवा के लेके आ जाओ। He says, Go and prepare a meal in a way which I like, और जो मैं मरने से पहले मैं तुम्हें आशीष करने so that वाला I can bless you before I die. कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसमें लिखा है मैं जी भर के तुम्हें मैं आशीष देने वाला है। I want to bless you bountifully. और ये जो बात अपने माता रेबेका को मालूम पड़ गया है। And this, his mother, Rebecca, is अब aware of. ये जो अध्याय आप पूरा पढ़ लीजिए You can read this entire chapter, और बहुत बार हमने उस पढ़ा है सीखा है, and many times you would have already लेकिन इसमें learned क्या about है this. जो अपने रेबेका ने अपने बेटा याकूब को ये जो कहानी जो बताती है, इस तरह And we तुम्हारा see बेटा that Rebecca narrates this incident to Jacob. इस तरह तुम्हारा डैडी ने ये सब आशीष करने वाला है। Such and such way your father is going to जल्दी bless जाके Esau. तुम पेट बकरी में अच्छा वाला लेके आ जाओ, माइक बना के देंगे करके।
go bring a very good lamb and I'll prepare a meal for it, और आशीष में देने वाला है। and he will bless you. सो सुना तुम इसके लिए तुम इस तरह जो खड़ा करके रेबेका ने याकूब पर बात की है। And we see that Rebecca tells Jacob to do such और याकूब things. ने ईसा को फंसा दिया, And चीटिंग we see किया, that Jacob cheated Esau again, और अपने पिता को भी उसने चीटिंग किया, झूठ बोला, and he also cheated his father और by lying. ईसाक ने अपने आशीष जो है याकूब को दे दिया है। And we see that Isaac blesses ये Esau, Jacob. अध्याय में पूरा 3-4 बार बढ़ने से मैं आपको और प्रभु आपसे बात करेंगे। And as you keep reading this chapter, the Lord will speak to you. अब इसी समय में जो याकूब को ईसाक ने आशीष करने के बाद ईसा आ रहा है उधर, And we see that after Isaac had blessed Jacob, and Esau returns there. जो ईसा जो बता रहा है, मैं तुम्हारा भाई को मैंने आशीष दे दिया तुम को समझ के। And Isaac tells Esau that I blessed your brother. तो ये वचन में पढ़ेंगे, 33 पढ़ेंगे। Then Isaac trembled exceedingly and said, Who? Where is the one who hunted game and brought it to me? I ate all of it before you came, and I have blessed him, and indeed he shall be blessed. तब ईसाक ने अत्यंत थर-थर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था, और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया। अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। ये समझ लो, जो परमेश्वर का जो दास है, जो ईसाक ने आशीष जो दे दिया, लेकिन आशीष हो चुका है। We see that the servant of God, Isaac, who had blessed him, blessed, and the person has received the blessing. और ईसा रो रहा है, verse 34। And verse 34 says that Esau is crying. When Esau heard the words of his father, he cried with an exceedingly great and bitter cry, and said to the father, Bless me, me also, O my father. अपने पिता को यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। वो बता रहा है, मुझको भी आशीर्वाद दे मेरा पिता। He's crying to his father saying, Bless me also. तो वो टाइम उस पर नेक्स्ट वचन में लिखा है, Verse 35, But he said, Your brother came with deceit and has taken away your blessing. उसने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया। और उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब यर्थात नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अडंगा मारा, मेरा पहलौटे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था, और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। जो ईसा बता रहा है, पहली बार भी मुझे फंसा दिया, मेरा जो पहलौटे का अधिकार जो है वो भी ले लिया, छीन लिया है। We see that Esau narrates the incidents happened to him, and he says that already before he has taken away my और blessings. अभी जो मेरा जो मिलने वाला आशीष में वो भी चीटिंग कर दिया, लूट लिया And है। even now the blessing that I'm supposed to receive, he's taken away from me. इसके लिए इनका नाम याकूब तो सही बता रहा है। No wonder his name is Jacob. आजकल बहुत जगह में जैकब का नाम करके तो वो समझते मतलब जो है मतलब कुछ फंसाने वाला करके। And the name Jacob means deceiver. और बहुत जन अभी भी And many have their names as Jacob and are still deceiving. इसीलिए परमेश्वर ने जैकब का नाम बदल दिया है। And that's why God changed the name of Jacob. हालेलुया। Hallelujah. आप देख लेंगे वर्ष आगे कंटिन्यू करेंगे, वर्ष 37। Then Isaac answered and said to Esau, Indeed, I have made him your master, and all his brethren I have given to him as servants. Has given to him as servants. वचन पढ़ेंगे। With grain and wine I have sustained him. What shall I do now for you, my son? ईसाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया,
और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? वो बता रहा मैं सब कुछ उनको आशीष दे दिया है। He says that I have already blessed him. और 38 Verse 38. And Esau said to his father, have you only one blessing, my father? Bless me also, O my father. And Esau lifted up his voice and wept. क्योंकि पिता का जो आशीर्वाद बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। Because it's so important to receive the blessings of his father. एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। आपने आशीष उनको दे दिया, अभी मुझे भी आशीष दो। You have blessed him, bless me also. यो कहकर एसाव फूट फूट कर रोया। वो रो रहा है, रो रहा है, लेकिन कुछ आशीष दिया नहीं है। And we see that Esau cries and repeatedly cries. तो verse 41 So Esau hated Jacob because of the blessing with which his father blessed him. And Esau said in his heart, the days of mourning for my father are at hand. Then I will kill my brother Jacob. एसाव ने तो अय्यूब से कहा, अय्यूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा, मेरे पिता के अनंत काल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। ये जो ईसा को बहुत गुस्सा है, 2 टाइम मुझे इतने बसा दिया, इनको बदला लेना पड़ेगा करके। And we see that how Esau was so angry against Jacob for the way he was अभी deceived. मेरे पिता की उम्र हो गया, अभी मरने वाला है, उसके बाद में इनको मैं खत्म करेंगे। And he knows that Isaac is pretty old and he may die any time. But after that, I will kill उसने Jacob. क्या पता है, अपने हृदय में जो बात किया है, वचन में जो लिखा है, अपने हृदय के अंदर बात किया, अपने आप को बात किया है। And the word says that Esau says in his heart. और ये जो बात है, वर्स नेक्स्ट वचन में लिखा है, वर्स 42 में। And the next verse 42 says, and the words of Esau, her oldest son, were told to Rebekah. So she sent and called Jacob her younger son, and said to him, surely your brother Esau comforts himself concerning you by intending to kill you. जब रेबेका को उसके पहलौठे पुत्र एसाव को ये बातें बताई गई, तब उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन में धीरज रखे हुए है। अब ये बात रेबेका को कैसा पता है? How did this word come to Rebekah? ईसा ने जो अपने मन के अंदर, हृदय के अंदर सोच लिया, इनको खत्म करना है। And we read in the word that these were the words said by Esau in his heart. और जो उनके मन की बात रेबेका को प्रभु ने दिखा दिया है। But the words that were in the heart of Esau was revealed to Rebekah. कारण क्या है? What was the reason? आप ही बताइए। You can answer, you can think and ponder. किस कारण इस तरफ जो उनको मालूम पड़ जाता है? How did she come to know? हम ये आगे ये इधर ही रहने दो, आगे हम पढ़ेंगे Hebrews chapter 9 verse 10। इब्रानियों की किताब वचन 9 अध्याय वचन 10। Concerned only with foods and drinks, various washings and fleshly ordinances imposed until the time of Reformation. इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा के पाने के लिए हुई है। इसमें जो और एक जगह में लिखा है, परमेश्वर जो किसको चुन लिया है, किसको बुलाता है, वो उनका वचन रहेगा। The word says that whoever the Lord calls, it will be said as promised. पर परमेश्वर किसको जो बुलाता है, अभी एक Romans
chapter 9, verse 10. ओ सॉरी, हाँ, रोमियो की किताब 9 अध्याय वचन 10. यस। And not only this, but when Rebekah also had conceived by one man, even by our father Isaac. और केवल यही नहीं, परंतु जब रेबेका भी एक से अर्थात हमारे पिता ईसाक से गर्भवती थी और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों का कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। हालेलुया। Hallelujah. अब ये देख लीजिए, ये जो जन्म होने से पहले इनके बारे में जो प्रभु जो बताया है रिबेका को, And we see that Rebekah was revealed the matters before the children were born. जो 11 में जो लिखा है, Verse 11 says जन्म होने से पहले, बालक जन्म होने से पहले that the children were not yet been born, प्रभु ने बता दिया, and God had revealed it, और उन्होंने कुछ गलत काम किया नहीं है। and He didn't do something wrong. जो इसमें जो वचन में जो लिखेगा, परमेश्वर के चुनौती के ऊपर, परमेश्वर जो आपको जो बुलाता है, That the purpose of God according to election, देंगे, that will stand. कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण बनी है। बुलाने वाले के कारण, परमेश्वर आपको बुलाए तो उसका कारण है। It's not by works, but by the calling of God over you. परमेश्वर को मालूम है, अपने माँ के घर में जन्म होने से पहले आपके बारे में वो मालूम है। And God knows that before you were born in your mother's womb, He knows about you. जन्म होने से पहले नाम से पुकारने वाले He परमेश्वर है। calls you before you were formed in your mother's womb. और जो ये व्यक्ति बड़ा होके क्या करने वाला है तो परमेश्वर जानते हैं, And God knows what a person becomes after he has grown. क्योंकि जो वचन में जो लिखा है, जो परमेश्वर ने जो याकूब को चुन लिया और ईसा को नफरत किया है। And we see that God had loved Jacob and hated Esau. क्यों? Why? क्यों? कौन सी कारण से जो बता रहा है? Why does the word say it? परमेश्वर को याकूब के बारे में अच्छी तरह मालूम पड़ गया, God knows about Jacob very well, और परमेश्वर को ईसा के बारे में भी मालूम पड़ गया। and God knows very well about Esau. जो क्यों याकूब को परमेश्वर ने प्रेम देखो कारण बोलता है, Why God loved Jacob has multiple reasons. और जो क्यों ईसा को प्रभु नफरत करने वाला है, And why God hated Esau also has reasons. और वचन में जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स पढ़ेंगे, जेनेसिस 28। उत्पत्ति की किताब 28। वो क्या उनके नाम के खिलाफ में, परमेश्वर के खिलाफ जो काम कर रहा, अपना माता पिता के खिलाफ जो काम कर रहा था करके, About what were the works of Esau and how he used to live against his parents. जो ईसाक ने जो अपना बेटा याकूब को आशीष दे दिया और अपने रेबेका भी दोनों अपना बेटे को भेज दिया, जाओ अपने गांव अपने भाई के घर पे जाओ। And we see that Isaac had blessed Jacob and they had sent him to Rebekah's native. और वहाँ मेरा भाई का बेटी है, उधर तुम शादी करना है। There you go and get married to my brother's और तुम daughters. ये संतान में इधर तुम शादी नहीं करना है। Don't get married here among these people. तो हम पढ़ेंगे 28 वर्स 1 से लेके 4 तक पढ़ेंगे। Then Isaac called Jacob and blessed him and charged him and said to him, You shall not take a wife from the daughters of Canaan. तब ईसाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। पद्दनराम में अपना नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। अब ये देखिए, जो खानान देश में अच्छे खूबसूरत है, अच्छे जगह है, लेकिन ये जगह का स्त्री के साथ तुम शादी नहीं करना है। Canaan was a beautiful city with beautiful women also, but they said, don't get married to any women here. और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए और तू राज्य की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम
की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसे तू परदेशी होकर रहता है और जिस परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। तुमको परमेश्वर जो अब्राहम को जो आशीष दिया है वही आशीष तुम्हें देंगे करके जो आशीष दिया था। They had blessed Jacob, saying, whatever they had blessed Abraham, those blessings will be blessed और upon उन्होंने you. क्या गलती किया है? But what was the mistake? Chapter 27 verse 41. So Esau hated Jacob because of ये the लोग- blessing. 1 minute, sorry. 27 verse 46. And Rebekah said to Isaac, I am weary of my life because of the daughters of Heth. If Jacob takes a wife of the daughters of Heth, like these who are the daughters of the land, what good will my life be to me? फिर रेबेका ने ईसाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन रखती हूँ। इसलिए यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसी इस देश को लड़कियां हैं, याकूब भी एक से ही विवाह कर ले तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा। हम लास्ट में एक वचन पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 26 verse 34. When Esau was 40 years old, he took as wives Judith the daughter of Beri the Hittite, and Basemath the daughter of Elon the Hittite, and they were a grief of mind to Isaac and Rebekah. उत्पत्ति की किताब 26 chapter वचन 34 and 35. तब उसने कहा, मैं तो इब्राहिम का दास हूँ। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया। उन्होंने 40 वर्ष में क्या किया? जो प्रभु जो नफरत किया वो परिवार से उन्होंने शादी की है। He being 40 years old, he married those who God disliked. और इसके बाद में जो इस्माइल के बेटी के उनके परंपरा में उनसे भी शादी की है। And he married the daughter of Ismail. और जो परमेश्वर जो कहता है तुम अन्य जाति से शादी नहीं करना है, And he says that you should not marry an unbeliever. जो कारण जो है तुमको पवित्र जीवन से परमेश्वर के जो रिलेशनशिप को तोड़ देंगे करके, So that you don't destroy the holy relationship. जो इस तरफ जो परमेश्वर के जो आशीष को ईसा ने छोड़ दिया है। And we see how deliberately and casually Esau let go his blessings. जो आप अपने जीवन में प्रभु को जो पसंद कार्य करना है, It's very important that you do things that are pleasing to God. और परमेश्वर जो बताता है वही आपको करना है। And what God commands you to do, only do those things. जो बता रहा है, जो रिबेका और इसहाक ने भेजा है उधर जाके शादी करो करके, याकूब ने उधर ही जाके शादी किया है। Just as what his parents, Isaac and Rebekah, had told Jacob to go and get married in that land, that's how he followed. And और ईसा ने गुस्सा होके जो ना पसंद है वो जाति उसके साथ शादी किया है। but in anger, what Esau did was he went and married in a family which God didn't want him to ये marry. प्रभु को मालूम है, इसलिए परमेश्वर ने ईसा को नफरत किया है। And God is knowing everything. That is the reason he hated मेरा प्रियो, Esau. आज परमेश्वर आपको जो कहता है, परमेश्वर को जो पसंद है वो कार्य कर लीजिए। My dear ones, do things that pleases the Lord. जो परमेश्वर आपको सामने जो दिखाता है उसके लिए, और आपको परमेश्वर जो आपको जो बताता है उसके आगे पालन कर लीजिए। It's not what you want to do, but what the Lord is directing you to do. That is the situation, and that is the things that you need to lead your जो life with. परमेश्वर आपके लिए आशीष रखा है, God has preserved blessings for you. जो किस तरह जो पहलौठा का जो अधिकार जो है आपको भी रखा है, He has also kept blessings of birthright for you. तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? And what do you have to do for it? परमेश्वर का बेटा और बेटी बन लीजिए। Become the sons and daughters of God. और जो किस तरह जो परमेश्वर जो आपके साथ जो प्रेम करता है उस तरफ आपके जीवन
जीवन में बदल दीजिए। And you need to change your lifestyle in a way that God will be pleased with your life. आमीन। Amen. इस तरफ आप बदलने से, आपका जीवन बदलने से परमेश्वर आपको बेटा बेटी बनाएंगे। When you change your life, He makes you His son and daughter. आपके जीवन में आशीष देंगे। And your life will be filled with एक बात याद blessings. रखेंगे, Remember one और thing. परमेश्वर जो भी बात किया तो करके दिखाने वाले परमेश्वर है। What the Lord says, He makes it come to pass. अगर थोड़े दिन अगर उत्तर नहीं है तो आप इंतजार कर लीजिए, परमेश्वर जो बात किया है जरूर होगा। If you have not received your answers, you need to wait and not give up. जो परमेश्वर जो लिखा है, वचन में जो लिखा है, वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। The word says He is not a God who lies. जो परमेश्वर जो करने वाले, जो क्या करने वाला वही बताएंगे। He's a God who says what He does जो बताया है वही करने वाला है and who does what He says. और करके दिखाने वाला And है। He will show it and prove it. परमेश्वर आपको आशीष देने वाला God है। bless you. आमीन। Amen. हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। Let's have, मेरे परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, Lord, we thank you. ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। We thank you for this जो beautiful आपने time. हमारे जो आशीष जो रखा है वो आशीष का हम खोना नहीं चाहिए प्रभु। And we pray that your promises will be fulfilled in our lives. आपको चरणों में रहने के लिए मदद कर लीजिए। Help us to come to your आपका हर presence. बातों को सुनने के लिए मदद कर लीजिए। Help us to listen to your word. आपका आज्ञा पालन करने की मदद कर लीजिए। Help us to obey your word. आपसे अलग होने के लिए कुछ बीच में कुछ भी तकलीफ आए तो भी, कुछ भी आए तो भी उनसे बचा दीजिए। Save us from all temptations that come between you and us. आमीन। Amen. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। In Jesus' name we pray. गॉड ब्लेस यू। Amen. आमीन। We thank you for joining along with us in this wonderful Sunday service. And we pray that today, as the Lord has been speaking to you, it will be a word of blessing in your life. Hallelujah. As you have joined along, और जैसे आपने ये वीडियो शेयर किया है अपने friends and families, definitely the Lord will do something new in their lives. हर एक की जिंदगी में प्रभु एक अच्छा कार्य करेगा। हालेलुया। जैसे आपने इतना समय निकाला है, प्रभु इस समय में आपको आशीष करेगा। हालेलुया। आइए हम अंतिम प्रार्थना के लिए तैयार रहेंगे। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hope you all are energetic after listening to the word of God. मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब उत्साहित हैं वचन सुनने के बाद। Let us end this service with a prayer. आइए हम खत्म करेंगे एक अंतिम प्रार्थना के साथ आज की सभा को। Thank you, Jesus, for this wonderful time you have given us, Lord Father. धन्यवाद यीशु, सुंदर समय जो आपने दिया Lord, thank you for what all you have done in our lives. और जो कुछ भी आपने हमारे जीवन में किया इसके लिए Lord, धन्यवाद। as you heard Pastor praying, Lord Jesus, प्रभु जैसे हमने प्रार्थना किया पासवान के साथ, whatever blessings he has released, प्रभु जो कुछ भी आशीष उन्होंने अब हमारे जीवन के लिए let it बात all be किया fulfilled in our life. वो हमारे जीवन के लिए पूरा हो Thank जाए। you, Lord Father, as you're going to do so. धन्यवाद यीशु, आप ऐसे करेंगे। Lord, as Pastor preached, और जैसे उन्होंने वचन बांटा, Lord Father, you help us, you lead us, Lord Jesus. प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए। Help us not to despise your word. प्रभु आपके वचन को ऐसे ही व्यर्थ न समझे, Let us not do things which you hate. वो तुच्छ न जाने और जो गलत है वो न करे हम Help प्रभु। us to live by your word. आपके वचनानुसार जीने के लिए मदद कीजिए। You be with us, Lord Jesus. आप हमारे साथ रहिए। I pray for all the members who are watching the live stream. और जो कोई ये लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करता है, Let them have peace and unity in their family. उनके घरों में प्रभु शांति समाधान रहे। Bless them, Lord Jesus. उन्हें आशीष कीजिए। Thank you, Lord Father, as you're going to do so. धन्यवाद यीशु, आप ऐसे करेंगे। I pray for the people at the hospital. और प्रभु जो हॉस्पिटल में है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, Protect them, Lord Jesus. उन्हें आप सुरक्षित Comfort रखिए, तसल्ली दीजिए, Comfort them, Lord Father. तसल्ली दीजिए, Bless them. आशीष Let them कीजिए। not feel alone. वो अकेलापन महसूस न करे Let them know always that you are by their side. और जो आपको खोजते हैं वो जाने कि आप उनके संग हैं। Thank you, Jesus, for shedding those precious blood on the cross of Calvary. प्रभु धन्यवाद, कलवरी के क्रूस में आपने अपना बहुमूल्य लहू बहाया, Because of those blood on the cross, we are saved today. और क्योंकि आपने लहू बहाया उसकी वजह से आज हमने उद्धार पाया है। Thank you, Jesus, for keeping your precious hand over us. और धन्यवाद आपने अपना हाथ हमारे ऊपर रखा। Lord Father, as we are going to enter a new week,
और जैसे एक नए हफ्ते में हम प्रवेश करते हैं, Protect us, Lord Jesus, from top to bottom, left, right, and front to back. प्रभु पूरी तरह से आप हमें सुरक्षित रखिए। Keep your angels in charge over us. आप स्वर्गदूत को भेजकर हमें सुरक्षित रखिए। Thank you, Jesus, as going to do so. धन्यवाद यीशु कैसे Whoever करेंगे। watches this live stream, let them not feel empty. जो कोई ये लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं वो खालीपन महसूस न करे, Let them be filled with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से भरे। Let them see something new in their lives. प्रभु वो आपके जीवन, आप उनके जीवन में एक महान कार्य कीजिए प्रभु। Let them see your word working in their lives. वो देखिए प्रभु कि आप एक नया कार्य कर रहे हैं। Bless them, Lord Jesus. उन्हें आशीष कीजिए। Thank you, Father, as you're going to do so. धन्यवाद पिता। In the name of Jesus, I humbly pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. Amen. आमीन। हालेलुया। आखिरी प्रार्थना हम करेंगे। मेरे पीछे आप प्रार्थना को दोहराइए। तू मुझे सचमुच आशीष देता, आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं इससे पीड़ित न रहूं। कि मैं इससे पीड़ित न रहूं। आमेन। आशीष लेंगे। आशीष करने वाले प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता, अभिषेक हम सबके साथ हमेशा हमेशा बने रहे। आमेन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जो आपके लिए जो आशीष रखा है कभी खोना नहीं चाहिए। And never miss out the blessing that God has kept in store for you. आमीन। Amen.